Okay, so I've heard about you guys a lot, and it's so nice to meet you now. So let's start with introduction. I'm Sambhav Jain. I'm All India rank 84 in CLAT and All India rank 28th in AGET. So moving forward to you. Hello buddies, I'm Mahika Godara and I secured All India rank 316 in CLAT. I secured a seat in NLSIU. Hi everyone, I'm Arushri Methi and I got AR 81 in CLAT and I'll be joining NLSIU. Hi everyone, I'm Rakshita and I secured All India rank 356 and I'm going to NLSIU. Hi guys, so nice to meet all of you. Congratulations on your performance. I'm Arjat Bansal. I secured All India rank 7 in CLAT and All India rank 23 in AGET. So I'll be going to NLU Delhi. Hello everyone, I am Dak Jain, All India rank 39 in CLAT and I'm going to NLSIU this year. So let's have some charcha. Definitely. Yeah. So let's get started. Sure. So यार आपका तो बोर्ड्स वगैरह कुछ है नहीं, मजे करने हैं। क्या चल रहा है लाइफ में? So me personally, I do not do well जब मेरे पास कुछ करने को नहीं होता. So I decided to join an internship at Legal Edge where I am working here basically. So from morning to evening मैं यहीं पे होता हूँ. Stay connected with the system as they say. So that is what I am doing. What about all of you? मैं तो free हूँ. Enjoying. I'm also enjoying life right now. Law school जाने से पहले जो मजे करने हैं सब कर लो and I'm also learning a few things right now. Is anybody giving boards? Yeah, me. We are That's going- why this question had so much pain. So basically, yeah, we've got boards and I also have science maths, which is not an easy thing. But उसके बाद तो मजे ही करने हैं. But it's amazing that you perform so well with both. So like, how did you manage both of them together? Like it's about prioritizing कि पहले क्या जरूरी है. So initially I could concentrate थोड़ा थोड़ा on my school. उसके बाद तो क्लैट करना ही था. क्लैट दिसंबर में हो गया, 2-3 महीने थे एंड बहुत अच्छी थोड़ी लानी होती है पर क्लैट का ऐसा कुछ नहीं है. तो हो रहा है मैनेज एंड उसके बाद डेफिनेटली आफ्टर बोर्ड्स आई वुड लाइक टू स्पेंड टाइम विद माय लव्ड वंस and my family and everything and मजे करने हैं. That's important. What about you? You You also have both, right? I just sidelined school completely in 11th. मतलब कुछ नहीं किया मैंने. I just gave 11th के final exams and CLAT के बाद boards कर ही रहे हैं आप. वो तो compulsory है ही करना. Boards कर ही रहे करना हैं. पड़ेगा. उसके बाद just working on myself and chilling. Great thing it is. So now from a dropper point of view, how was your CLAT preparation? So for me personally, my journey was a little different than everybody else because as you guys might know, I prepared for NEET before this and I started preparing for CLAT 6 months before the paper. So my preparation was just सुबह से शाम तक free time होता था, तो just सुबह से शाम तक आके पढ़ाई करना होता था. So that is how it went. It was really important to stay connected with teachers, friends and family to not lose my mind. But it was an enjoyable journey overall. Nice. What about you? I was also a dropper. तो what मतलब पढ़ना बट मैं पूरा दिन नहीं पढ़ सकती. तो I used to मतलब मैंने अगर वो टाइम सेट कर रखा है तो उस टाइम पढ़ना and बाकी I used to spend it sometime with my friends and sometime chilling and everything because for me 12 घंटे लगातार पढ़ना तो मैं पागल हो जाऊंगी. Yeah, what is necessary is quality or quantity. Yeah, that's what I want about. So same happened with me. Like I had a proper schedule. I had everything in that: movies, books, hanging out with friends, going out, everything included. So yeah, that's how it went. And what about you? I also studied regularly for 7 to 8 hours and did some physical activities. That's all. Okay, nice. मेरे से personally तो यार schedule follow नहीं हो पाता. So like, how did you नहीं, guys make मैं- your schedule? Like मेरा भी शेड्यूल कोई फिक्स नहीं था. बस सुबह उठ के ये था कि पेपर पढ़ना एंड उसके बाद बस जीके कर लेनी है. और फिर पूरा दिन मॉड्यूल्स मॉक्स वही. मेरा तो मैं टू डू लिस्ट बनाती थी तो इट यूज्ड टू हेल्प कि जब आप वो क्रॉस करते हो ना तो अंदर से जो सेटिस्फैक्शन हाँ, that helps. हाँ तो उसमें होता था. और फिर रात को आप जब एनालाइज करते हो आपने क्या नहीं किया तो फिर वो नेक्स्ट डे थोड़ा स्ट्रेस वाला माहौल रहता है. I think this journey not only about the results we got, but it also taught us life. Yes. Like we got to know a lot about many things. That is true. Exactly, like because- CLAT is a skill building exam. It's not about how you perform in the paper. It's about how you perform in the journey. Yeah, How you true. build skills. True.
So what do you think कितना टाइम चाहिए क्लैट को क्लियर करने के लिए? Because of course you guys had your schedule और इतने घंटे पढ़ रहे थे, तो कितने घंटे पढ़ना इम्पोर्टेंट है और कितने टाइम की प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ है क्या? Yeah, I think that's a good question क्योंकि रहता है ना बच्चों को ये हम भी यही देखते थे कितने घंटे पढ़े यार हो जाए हमारा, Especially वो बोर्ड्स के साथ जो मैनेज कर रहा था तुम लोगों ने, तो how much time you were getting to it? Yeah, so I think it's, as she said, it's not about the quantity but about the quality. And time भी यहाँ पे we've got Arjit who did it in 6 months, and then we've got Rakshita who was studying from 2 years. So it's very subjective. मतलब वही ना, जब जागो जब ही सवेरा. It depends on person's abilities. We don't all start from the same level of preparation. It's the end goal which matters. तो वो everybody did well यहाँ. That's good. Yeah, the end result तो सबका अच्छा ही रहा. No one sees your hard work. Everyone sees the result. Yeah. तो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा था? For me personally, मेरा logical अच्छा था, which surprised a lot of kids because सबको logical खराब लगता था. But मेरे को personally अच्छा लगता था once I learned the basics. So because when I started preparation, logical बहुत अजीब था. मैं सोच के आया था लॉजिक तो है ही अपने पास, हो जाएगा सब. बट मैंने एक्चुअली स्टार्टेड गिविंग मॉक्स, पता ही नहीं प्रेमिस क्या होता है, assumption क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है. बट once I learned all of that, then I was most comfortable in logical. What about the rest of it? I think logical में ये चीज भी रहता है कि it's very subjective about the mocks we give. तो बहुत सारे कोचिंग के इधर उधर मॉक्स में लॉजिकल भी नो कैसा रहता है. टेलीग्राम की दुनिया में मिल तो सभी जाते हैं. तो दैट इज अ थिंग टू कंसीडर. बाकी सबका क्या था स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन? Mine was QT. Since I took maths as my subject in 11th. ये फायदा मिलता है. या मैथ्स वाले मेजॉरिटी में है क्या? Yeah, so कितने मैथ्स वाले हैं यहाँ पे? वो एंड साइंस वाले I was हाय हाय. बाकी कॉमर्स ह्यूमैनिटीज वाले भी है. I had bio. So यार क्वांट का तो काफी इशू रहता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच वर स्टडीइंग विद मी, उनको क्वांट में हमेशा इशू रहता था थोड़ा सा. सो एंड यू गाइस आर सेइंग कि तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन था. सो लाइक हाउ एग्जैक्टली डिड यू गो अबाउट इट? यार आई थिंक क्वांट में इम्पोर्टेंट होता है टू लर्न सम ट्रिक्स एंड टिडबिट्स जो मतलब क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन को भी यू कैन सॉल्व दिस वे. तो वो आई थिंक विद प्रैक्टिस इट हैपेंस. एंड बाकी क्यूटी मैथ्स नहीं है. ट्रू, क्यूटी इज नॉट मैथ्स. बाकी आपके बेसिक्स और फॉर्मूलाज अगर आपको याद होते हैं तो वो आराम से सिर्फ कैलकुलेशन होती है. बाकी तो प्लस माइनस है. क्लैट इज अबाउट प्लस माइनस. एंड प्लस माइनस परसेंटेज. एंड क्यूटी को मेक इट एंड ब्रेक इट सेक्शन बोलते हैं. एंड ये इस बार के क्लैट के पेपर में तो हुआ है. बाकी और तो हमेशा ऐसे ही होता है. डरते हैं कि मैथ सब्जेक्ट है. क्योंकि यार 70% तो छोड़ देते ना मैथ्स. मेजरली बच्चों को यही होता है कि मैथ तो होगी नहीं, तो बाकी एक स्मार्ट नंबर पे देख लेते. बट और वो एक स्मार्ट नहीं है आपके. वही बिकॉज़ इशू इज बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सब्जेक्टिव हैं, तो स्कोप रहता है हमेशा नंबर कटने हमेशा का. रहता है. क्यूटी इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें फुल नंबर लाए जा सकते हैं. Surely. बहुत इजीली लाया जा सकता क्यूटी है. में होता है कि ये आंसर आपका सही आ रहा है तो आपको पता है कि ये सही ये है. और क्यूटी तो इस लाइक बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं है सिलेबस. 10th क्लास तक की आती है. हाँ. सो लाइक बस पीसीएम वालों का एडवांटेज इसलिए मिल जाता है क्योंकि पेपर विद नंबर्स और उसके बाद में फिर वही है. मतलब आपकी वो प्रैक्टिस रहती है ना तो. हाँ, फ्लो में हाँ. होता है. और वो डंड नहीं होता. हाँ. हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं. हमारे लिए जिन्होंने 11 12th में पढ़ी हुई है उनके लिए तो 10th की मैथ्स है वो, तो हाँ. बहुत इजी होती है. बायो वाले तो बदनाम है कि मैथ्स पसंद नहीं होती इसलिए बायो लेते हैं. बट स्टिल अच्छा, जिसकी मैथ्स यहाँ पे अच्छी नहीं थी उसने क्या किया था? सो जिनके अच्छे होते वो तो बोल ही नहीं. सो मी पर्सनली आई हैड बायो, तो मतलब थोड़ा सा स्टिग्मा रहता है कि मैथ्स पसंद नहीं थी इसलिए बायो लिया. और मैंने स्टार्टेड में प्रिपरेशन आई रियलाइज किया 10th तक की मैथ्स तो पढ़ी है मैंने, और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस हो जाती थी. सो विद प्रैक्टिस ओवर टाइम द स्कोर डिड इंक्रीज, और मैंने यही रियलाइज किया कि दिस इज अ सेक्शन जो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए. हम प्रैक्टिस के साथ डेफिनेटली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. एज यू सेड मैथ्स नहीं है, क्यूटी है. तो शेप्स, सर्कल्स, ट्रिग्नो नहीं आ रही तो चेल्सी ने. And our dear director Sumit sir was also I mean, he taught really well. So QT master. जब भी कोई इशू आता था मैं उनके पास जाता था, वो 5-10 मिनट में पूरा टॉपिक समझा देते थे. So that definitely. He is good at these things. डेफिनेटली क्यूटी. नहीं जो मार्क्स स्ट्रॉन्गेस्ट पे तो बात कर ली, वीकेस्ट क्या क्या है? जीके. जीके ये तो रहता ही सबका है. जीके यूनिवर्सल है. Yeah, GK was universally because again मतलब
बाकी सब में फिक्स सिलेबस होता है, फिक्स कंसेप्ट्स होते हैं, खत्म नहीं होती है। और इससे पहले भी स्कूल की प्रिपरेशन की है, मैंने नीट की भी प्रिपरेशन की है, सब में फिक्स सिलेबस है कि हाँ यहाँ से बाहर तो नहीं आएगा। जीके में पता ही नहीं यार क्या क्या पढ़ना है एक्चुअली। पर जीके ऐसा है कि कितना ही पढ़ लो बहुत कम है, ऐसा है कि अभी और पढ़ सकते हैं, अभी ये टॉपिक आ गया, अरे आज ये हो गया। सोर्सेज इज वेल ना यार, इतने सारे सोर्सेज, पूरा यूपीएससी घुस जाता है। चाहे 3-4 भी कर लो तब भी फोमो रहता है कि यार हाँ। अभी बहुत कुछ आज किसी दोस्त ने आके क्वेश्चन पूछ लिया और आगे बढ़ा दो। ये कहाँ से पढ़ा? अच्छा तो बट हम सबने क्लैट में अच्छा किया तो ऑब्वियसली जीके में भी अच्छा किया है, हाँ। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कैसे अच्छा किया हमने? हाउ डिड मैंने वी तो गो रिवाइज बहुत किया जीके, मतलब सेम, मैंने ज्यादा सोर्स में नहीं गई। अगर मैं सिर्फ 2 सोर्सेज से पढ़ रही हूँ उसको 5-6 बार रिवाइज करो, वीक में, मंथली, पूरा एंड करो। हाउ टू डिसाइड द सोर्सेज? अब वो तुम्हें पता चल जाता है तुम कहाँ से पढ़ा, तुम पढ़ पा रहे हो। So I had class notes, newspaper notes and a magazine. तो मैं उन्हीं को रिवाइज करता रहता था and it worked out well. तो न्यूज़पेपर नोट्स यूजफुल रहते हैं क्या बहुत ज्यादा? हाँ, मैं इतना नहीं बनाता था, लाइक मैं ना एक हेडलाइन है वो इम्पोर्टेंट वो लिख लेता था। बाकी फिर मैंने जब बीच में बनाने छोड़ा तो मेरे एक फ्रेंड था वो मुझे प्रोवाइड करा रहा था। And I think Arjit banged a lot upon Clat post. Yeah, I read the Clat post. मेरा प्राइमरी सोर्स Clat post था और न्यूज़पेपर था। उसके बाद I did go to some supplementary sources की कुछ चीजें YouTube से and classes obviously were there. And sometimes जब मुझे लगे कोई टॉपिक बिल्कुल ही समझ नहीं आया और चाहिए मुझे, तो maybe I went to some UPSC compendium जो मैं normally advise नहीं करता because Clat दे रहे हैं यार UPSC नहीं। बट जीके में रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट था रनिंग आफ्टर थीम्स rather than I think definitely. What helped me a lot was group discussions because मेरा तो काफी अच्छा बैकलॉग था, 4-5 महीने का। Yeah. तो like GK discussions helped me a lot. मेरा ऐसे proper group वाइब था, तो अंजलि was there, अनंत was there and निखिल was there. तो हम लोग ऐसे डिस्कशन वगैरह रहता था, तो it actually helped a lot क्योंकि फिर आपके ऊपर एक बाउंडेशन हो जाती है कि करना ही है यार, बाकी 3 लोग भी कर रहे हैं। Same, we also had a study group for GK and all, but मतलब mainly हमारा उसमें CR discuss करते थे। GK के लिए बस I used to do classes and shorts and Clat post भी मैंने करी नहीं। What's I just your classes opinion and short everyone's shorts. on the group study वाला चीज? यार मेरे को पर्सनली ग्रुप स्टडी नेवर सूटेड बिकॉज ऑफ कोर्स स्पीड का थोड़ा सा अलाइन नहीं हो पाता था कि मैं कितनी स्पीड में कुछ कवर कर रहा हूँ या वो कितनी स्पीड में कुछ कवर कर रहे हैं। समटाइम्स दे आर फास्टर और मेरे को समझ नहीं आ रहा, समटाइम्स आई एम फास्टर एंड उनको समझ नहीं आ रहा, तो दैट ऑलवेज हैपेंस एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग अ लॉट एंड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सो आई ओनली हैड 6 months, so स्टार्टिंग से मेरे घर वालों ने भी बोल रखा था एंड मेरे दिमाग में फिक्स था दैट अभी थोड़ा फ्रेंडशिप वगैरह से दूर होके प्रिपरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स आई मेड फ्रेंड्स बट स्टडी के टाइम पे आई प्रेफर्ड बीइंग अलोन बिकॉज़ सो दैट आई डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। That is true for me as well. Like I'm that guy who'll waste time in group study. So I just prefer being alone, and I don't need to have something interesting with me while I'm studying. So that's Even I agree with you guys. वो group session कब gossip session बन जाता है, कभी पता नहीं चलता। no, like I disagree. Like हमारे ग्रुप में काफी डाइवर्सिटी थी कि किसी की लीगल खराब है, किसी की याद खराब है, तो एंड वी हैव दैट वन गर्ल जो अगर हम कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो 10 मिनट गॉसिप हो गई तो शी बी लाइक पढ़ लो, तुम्हें क्लैट देना है, तो वो काफी लिमिट में रहता था हमारे हमारा। बात ही करते एंड हम लोग का वो ड्रॉप वाला भी था, हम लोग के स्कूल फ्रेंड्स वगैरह वाला हमारा ड्रॉप वाला था, तो सबका सिर्फ वो कोचिंग वाला ग्रुप रहता था, तो एक उसका भी फैक्टर I think हाँ वही रहता है कि ग्रुप कैसा है। हाँ। If everyone is oriented तो it हाँ। definitely helps Yeah. क्योंकि अगला आदमी भी procrastinate नहीं करेगा। True. डेफिनेटली She is the only one जो हमारे ग्रुप में procrastinate। I procrastinate a lot. To be honest, everyone does it. हाँ यार ये तो होता है ना। प्रोक्रास्टिनेट सब करते हैं बट इस जर्नी में स्पेसिफिकली बिकॉज मेरे पास टाइम कम था एंड आई वाज कमिंग ऑफ अ लॉट ऑफ लोड, तो मेरे पास टाइम नहीं था इतना प्रोक्रास्टिनेट करने का। आई वाज ऑलवेज अंडर प्रेशर, तो जिसकी वजह से आई फेल्ट कि यार अभी मैं अपने दुखड़े भी किसी के साथ लेके नहीं बैठना चाहता एंड जस्ट आई डिड नॉट नीड दैट एक्स्ट्रा मोटिवेशन या एक्स्ट्रा समथिंग टू पुश मी, ऑलरेडी था बहुत ज्यादा। इन द जर्नी सब करते हैं बट ये भी कैन से कि हमने बाकियों से शायद कम किया होगा थोड़ा। Like I had a lot of time to procrastinate. I prepared for 1.5 years. बट अदर्स यहाँ पे didn't have, बाकी सबने अंडर 1 year वाला करा था। Like, मैंने स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो पूरा प्रोक्रास्टिनेट किया। Yeah, even I had Goa trip. अभी वो समर हॉलीडेज हो जाते हैं ना उस टाइम हाँ, पे, ये सबके साथ ही होता है। तो फिर क्लैट 2025 वाले स्टूडेंट्स को क्या टिप देना चाहोगे आप सब? पढ़ लो भाई। Best tip.
No, so as we just discussed, procrastination is something जो हमें नहीं करनी चाहिए because if we focus और तो पैनिक भी नहीं करना चाहिए. हाँ Yeah, I think positivity is the most important thing. कुछ भी चल रहा हो, mock scores बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, but they don't matter a lot. You are doing the right things, the right process. किसी भी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो होंगे. और अभी अगर अप्स एंड डाउन हो भी रहे तो आपको शेयर करना चाहिए किसी के हाँ, साथ. आप जब तक 100% बैठे जाओगे वो और बढ़ता जाएगा. When it piles up in our head. या Like the journey is itself a roller coaster ride. मतलब हाँ. law school से आप पहले ही एक roller coaster ride experience कर लेते हो अच्छे से. तो And I think we Sharing talked है. about कि how did we go to our highs, but जो रोलर कोस्टर में लोज आते हैं वो भी we all definitely had, तो एक बार उनकी भी बात करते हैं. Let's make it more deep. Starts. Okay, तो like मेरा लो टाइम आया था शायद अगस्त में. उस टाइम मेरे मॉक स्कोर्स like 60s और 70s में डिप कर गए थे. And the reason was GK and CR. तो I had to improve a lot. मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स ली, मतलब उसके बाद प्रैक्टिस करी उनको. रोज में मॉड्यूल्स ही करता था. मॉक्स बहुत ज्यादा दिए रोज, मतलब हफ्ते के 2-3 मॉक्स करे उनको. एनालाइजिंग ज्यादा करे मॉक्स को, और बस ऐसे ही करते करते फिर 1-2 महीने बाद स्कोर वापस सही हो गए. जीके में मैं पहले क्या करता था, मैं सिर्फ मैगजीन्स करता था. जैसे एक बार पढ़ ली और उसके बाद बस हो गया. उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं यार रिवीजन कर, कि एक बार तो याद होगा नहीं ऑब्वियसली. तो बस वो रिवीजन से ही दोबारा सही हो गया. मेरा तो स्टार्टिंग की जर्नी थी वो एकदम अच्छी गई थी. स्कोर्स भी अच्छे अच्छे. जब लास्ट 2-3 मंथ्स रहे थे एग्जाम से पहले, तब एकदम ही स्कोर्स में ड्रॉप आ गया. मतलब जहाँ से शुरू किया था वापस वहीं पे ही आ गए. वापस सारी चीज़ों को स्टैटिक किया, सब पे वापस फोकस किया और मेरा हो गया था. फिर मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया था, थोड़ा टीचर्स ने गाइड किया. मेरा ऐसा चिल जर्नी रहा. बट क्लैट का वो एग्जाम से 1 वीक पहले वाला टाइम पीरियड, मैं मेरी बहन को रात को उठाती थी कि भाई मेरी मतलब कि अगर मेरा क्लास में नहीं हुआ, ड्रॉपर था, तो आपको और ज्यादा पैनिक होता है कि नहीं हुआ तो कौन सा कॉलेज, किस में जाऊंगी. बट एंड फिर ठीक है वो निकला टाइम. फिर जब क्लैट हुआ मैंने मेरा पेपर चेक नहीं किया था, मैंने रिजल्ट सीधा चेक किया था. एंड सबके स्कोर सुन के जो फट रही थी. मेरा लो पीरियड अगस्त सितंबर में आया था. लाइक मेरा स्कोर गिर रहे थे 50, मतलब आई स्कोर 90 एंड देन सीधा 50. तो बहुत गंदी हालत हो गई थी. फिर I remember that one. मैं सुमित्रा के सामने 45 मिनट तक मैं रोई थी. मैंने सर क्या करूँ मैं, मुझे बता दो. फिर बस वही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी. मैंने 1 हफ्ते का ब्रेक लिया, पूरा 1 हफ्ते का ब्रेक लेके फिर मैं वापस आई. फिर मैंने सारे मॉक्स दिए और जीके का रिवीजन किया, जो मेरा सबसे ही वीकेस्ट सेक्शन था उसका रिवीजन किया. मैं पूरा दिन, मैं 1 घंटा मेरी मम्मी से बात कर रही थी कि मम्मी मेरे को चिल करो थोड़ा, जस्ट मेक मी काम. बस ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते. So मैं तो स्टार्ट ही लो पीरियड से हुआ था. So in that during the first about 2 months of preparation, I used to like just study. मैं किसी से बात नहीं करता था. I told everybody that. All my friends, family को भी टाइम नहीं देता था. For like 8, 10, 12 hours I used to just study. एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी मैंने वहाँ पे जाके. And once my score started improving, उसके बाद I realized okay now ठीक है, थोड़ा सा safe zone में यहाँ. Then I did थोड़ा सा relax किया, थोड़ा बहुत बात कर लेता था बीच बीच में फ्रेंड से या मॉम से. Still it was very less, but like once or twice हफ्ते में कर ली बात ये सब. But then firstly like during the boot camp time, some of you might know my father had a stroke. So that was also one low time which I had to manage my family and studies at the same time. But yeah, family was always supportive, so we were able to overcome that. बाकी पेपर से 1 महीने पहले जस्ट जो दिवाली आई थी, I think you guys can relate because Diwali is the biggest festival here, so everybody gets distracted a little bit. तो उस टाइम से जस्ट पहले मेरे स्कोर्स भी डिप होने स्टार्ट हो गए थे. आई डू नॉट नो, मे बी मॉक्स ऐसे आ रहे थे, मे बी मेरे दिमाग का सैचुरेशन रीच हो गया था. बट एट दैट टाइम माय फैमिली एडवाइस्ड मी कि बहुत पढ़ाई कर ली, टेक अ ब्रेक, टेक दिस 1 week off, which I think helped me a lot because I went out थोड़ा सा, I met my girlfriend, which helped me a lot. It relaxed me a lot, and I definitely say that keeping your mental health good is also important, and I'm always grateful for her because that was a low phase. But after that, after meeting her, after relaxing a bit, my scores never went down again until paper. So Lady love work for you. Oh, that's sweet. अब डीप टॉक हो गई. अब बताओ कॉलेज में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? Like I am personally excited for the Union Week and
especially NLS ball. Yeah, वही, having fun, living life. Hostel life. Hostel So for NLU Delhi, there is a situation in which Delhi NCR students do not get hostel because there is lack of space, and my permanent residence address is in Noida. So I might not be getting a hostel, which is something that I'm sad about. But with friends, we might take a flat or PG, and of course, it's the journey which is important. And friends के साथ enjoy करेंगे, college life enjoy करेंगे, and we'll definitely continue working hard there as well. हम जिनको हॉस्टल मिल रहा है उनके रूम्स बहुत ही छोटे हैं. Like 3% Yeah, one 3 room. 3 हमारे एक seaters. सिंगल भी है बट सिंगल शायद स्टेबल के बराबर है. तो यही है. मैं तो लाइक आई एम पर्सनली एक्साइटेड फॉर मूड्स एंड जस्ट द लाइफ दैट विल हैव हियर. मतलब वो कॉलेज लाइफ एक्सपेक्टेशन बन चुकी है. वैसे ही हो तो ज्यादा अच्छा है. Obviously, I don't think law life नहीं, वो नहीं, वाली होती है. It's वो not that वाली engineering वाला. Not that छिछोरे वाला life, but yeah. ठीक है, फन तो कर लेंगे. अभी भी कर ही रहे हैं. बस हम थोड़े सिविलाइज हो गए. Like GK रिवीजन वगैरह, मॉक्स वगैरह, इनकी तो सभी बात करते हैं. मतलब वो एक फैक्टर होता है ना जो आप सबको सबसे हटा के मतलब एकदम साइड में रखता है. वो एक्स फैक्टर क्या था? Like for me it was like कि मैं पैनिक नहीं करता था. Like I was chill all throughout my journey. मैं पढ़ता भी मतलब मेरे peers के like मेरे कुछ दोस्त थे वो 17 घंटे 18 घंटे में पढ़ते थे. मैं सिर्फ 8-10 घंटे बस मैक्सिमम. उसके बाद लाइक आपको लाइफस्टाइल इनकलकेट करना है इसको अपनी. लाइक पूरा सिर्फ पढ़ते नहीं रहना और बाकी चीजों भी करो क्योंकि वही आपको रिफ्रेश करती है. एंड ऑब्वियसली ज्यादा पढ़ने से कभी ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे. Definitely. And I think CLAT is more about a mental game as well, हाँ हाँ. rather than theoretical वाला. ये नहीं है ना कि आप रट के जाओगे तो अगले दिन कुछ हो जाएगा. You just have to build an aptitude or a Yeah, skill. 100%. एक बार वो build हो जाए तो उसको वहीं पर रखना है बस. हाँ. बाकी मजे करो. So I think सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट the things we did other than the पढ़ाई वाला चीज are also very important. तो Yeah. वो I think is not usually very talked about. हाँ. जो भी YouTube पे टिप्स वगैरह का वीडियो चल रहा है, 7 tips that will make your journey, but वो नहीं होता है. I think behind the scenes बहुत सारी चीजें important होती है. तो the people you are roaming around and the support of your family. My family also supported me a lot, and my friends I just named. And उसके अलावा भी but yeah I think The X factor for me was मैंने social media use नहीं किया during my that is journey. yeah I think I do have this question कि how to avoid the distractions in social media with like I we still are coming don't of have. age as well. So there are many aspects of this and friends, social media, distractions, घूमना, फिरना, clubbing, all that. मैं friends के साथ connected रहती थी but social media से I was off. I still don't have an Instagram account. Same here. Okay, so I do have an Instagram account, but during my preparation, I had basically like deleted it from my phone. Beach mein I reinstalled it because there was a current affairs channel on Instagram which helped a lot for one-liners. But other than that, I had told, as I told you guys, मैंने अपने सारे friends को बोल दिया था that until I've done something, तब तक I won't talk to any of you. अब तो कर रहे होंगे अच्छे से बात. अब कर रहे हैं. But all my friends were also very supportive. बीच में अगर कभी मेरे को उनसे बात करनी पड़ी, just when I told them that I might not be able to talk to you, they were very supportive. कि यार we're always here for you वाला situation. And of course, I did talk to my family a lot and my girlfriend. Which is something that I feel is not talked about enough. कि everybody says this time, but distract नहीं होना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. हाँ, there is this taboo कि Yeah, that is very important. But at the same time, it's not that friends या फिर girlfriend या फिर even spending time with your family is going to distract you always. it never. If it is something which is good for you, if it's a healthy friend circle, if it is a healthy relationship, if your family does not pressure you बहुत ज़्यादा, which I hope is not happening. So obviously these are things which help you and अपनी mentality जिसकी आपने बात की that which is very important in our journey, उसको भी अच्छा करते हैं. और CLAT and specifically we noticed कि यार pattern कभी भी change हो जाता है, कुछ भी पेपर में आ जाता है. So we need to be prepared for all of that. And उसके लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, being positive, being around happy people is something which helps a lot. I think these things, a friend, yeah, as you said, being in a relationship, these things only help if you, मतलब, they also support you. Yeah. अब ये नहीं कि आप obviously if you are on 10 hours for calls, that obviously won't आपको help. पता होता है कि आपका टॉक्सिक फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप कौन सा है, ये आपको deep down पता होता है. हाँ.
पर मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि ऑलरेडी जब माइंड को सेट होता है तो अपन किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है जर्नी में कि अपन गिव अप करने का अपना होता है, पर अगर अपन राइट पीपल के आसपास हैं तो वो अपने आप मैनेज कर लेते हैं, अपन को सही टाइम पे सपोर्ट करते हैं। Like I used to talk a lot to my parents and they were like, अरे हमें पता है तेरा हो जाएगा, तू क्यों टेंशन रही है? और मैं रोते रोते उनसे कह रही थी, अरे मुझे पता है मेरा हो जाएगा, लेकिन MLS होगा या नहीं मुझे नहीं पता। And like my father तो पूरा टाइम तू छोड़ दे, तू मत कर, अगर तुझे रोना है तो तू मत कर। फिर मैं वापस पढ़ती थी। Like for me it was just an healthy distraction. Like my parents, like मम्मा पापा को जब भी कहता था कि क्या नहीं हुआ तो क्या हुआ, बोले जयपुर से लेकर क्या ही होगा। तो यही था। और मेरा बेस्ट फ्रेंड है एक सक्षम, और मेरे क्लास ग्रुप में एक फ्रेंड बना था हार्दिक, तो वो दोनों बहुत अच्छे थे, उनसे बात करता रहता था मैं। तो हाँ, तो माइंड फ्रेश करने के लिए बहुत सही था। Family helps a lot in that journey. अच्छा अपन ने पढ़ाई कब तक की थी, क्लासेस कब तक ली थी? ये ऑल्सो रहता है बच्चों को कि क्लासेस छोड़ दो या टच में छोड़ दो, अब तो सब खुद पढ़ना है, तो दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो कब तक अपन ने क्या करा था? For me personally, it was very important to stay connected with the system because, as I said, I was not talking to anybody a lot. मैंने सबको पहले ही बोल दिया था। So because of that, घर पे बैठ के काफी isolation सी हो जाती है, and I had already taken 2 drops per day, so I was very much coming up from a place of isolation. So for me, it was very important कि मैं coaching आ जाऊँ, कुछ बच्चों को देख लूँ, sometimes talk to them, stay connected with the mentors. So I remember when everybody had stopped coming to the coaching, I was still coming to the coaching and still attending classes. कभी लगता था कुछ repeat हो रहा है, तो मैं अपना खुद का पढ़ लेता था क्लास में बैठ के, but still I attend the class. ऐसा भी हुआ है that I was the only student in the class, which was a fun experience in of its own. It is attention मिल पाती है teachers से, you can talk to them. बाकी फैमिली के हिसाब से my brother is also in RML NLU right now, so he cleared CLAT and he guided me a lot. He was always there to support me. So again, family, being connected with your family, my mom always supported me. That is very important. And everyone else? मैंने तो first 6 months मेरा I joined in June 2022, तो मैंने दिसंबर तक पूरा कोर्स कर लिया था। उसके बाद थोड़ी बहुत क्लासेस लेती थी, बाकी मैं जीके पढ़ती थी पूरा दिन, और I had a lot of time, तो मैं मेरे पेरेंट्स से बात करती थी, मैं मेरे दोस्तों से बात करती थी, लेकिन मैं सुबह 10 बजे कोचिंग में आ जाती थी और मैं अराउंड 6 o'clock या 5:30 के आसपास निकलती थी, और उस टाइम में मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती थी मैक्स, और बस उसी टाइम में पढ़ती थी। उसके ना मैं घर जाके पढ़ती थी, ना मैं घर से आने से पहले पढ़ती थी, मैं सिर्फ कोचिंग में पढ़ती थी। मैंने भी first 6 months classes ली थी। हाँ मतलब यही रहता है। मैंने क्या होता है journey 6 months की? मैंने तो बीच में छोड़ दिया था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैं क्लासेस नहीं लेती थी, मैं कोचिंग नहीं जाती थी। आई जॉइंड अ लाइब्रेरी और मैं वहां पढ़ती थी 5-6 घंटे, बट देन आई फील यार थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है, टीचर से बात करना बहुत जरूरी है, तो देन मैंने छोड़ दी लाइब्रेरी। फिर मैं कोचिंग आती थी, मुझे 2 घंटे का ट्रैवल लगता था, बट स्टिल मैं आती थी कि मुझे बात करनी पड़ेगी किसी से, मैं अकेले नहीं पढ़ सकती। ये तो हाँ हैपेंस, लाइक आई तो केम कोचिंग टिल द वेरी लास्ट डे भी, एवरी डे, पूरी जर्नी में एक भी दिन नहीं था जब मैं कोचिंग नहीं आया। सेकंड को भी आया, थर्ड इवन थर्ड को भी आया। सो देयर वाज नो डे कि व्हेन आई डिडंट गो टू कोचिंग। बट आई थिंक क्लासेस लेना लाइक आइडियल सिनेरियो है कि 1-1.5 महीने पहले आपका सिलेबस एटलीस्ट खत्म हो जाए, जो पढ़ने वाला चीज है। लास्ट मंथ तो रिवीजन के लिए होना हाँ, चाहिए, लास्ट 2 क्योंकि मंथ्स उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता, फिर जितना पढ़ना था which had not happened in my case. तो one good thing which I did was 3 बैचेस में एक साथ क्लास लेके, तो सुबह वाले बैच में क्लास ली, फिर दिन वाले में भी ली, शाम वाले में भी ली। अच्छा, तो 15-20 दिन तो यही रह रहा था। ऑब्वियसली सुमित सर डिडंट लाइक इट वेरी मच। हर बैच में ही स्टेकिंग। बट या आई थिंक द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि सिलेबस 2 महीने पहले टाइप्स खत्म हो जाना चाहिए। एंड या बीइंग कनेक्टेड विद द मेंटर्स तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली। लाइक मेरा था कि मैंने 1 मंथ या 2 मंथ पहले क्लासेस लेना बंद कर दी थी, क्योंकि मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करता हूँ। बस मेरा मतलब मैंने बताया कि मैं एक बार से डिवाइस खोल लूँ तो मैं शायद यूट्यूब पे चला जाता हूँ। तो मैं इसलिए लाइक 1 महीना 2 महीने पहले बंद कर दी, सिर्फ जी की क्लासेस लेता था मैं, क्योंकि वो जो सर टीचर थे वो बहुत सही थे और क्लास नोट्स अच्छे देते थे मुझे। मेरा ये था, मेरा पूरा जर्नी सेल्फ प्रिपरेशन पे था। मैंने लीगल एड्स की सिर्फ टेस्ट सीरीज ली थी, तो मेरे लिए डिफिकल्टी ये थी, मैं पढ़ाई से कनेक्टेड नहीं रह पा रही थी। तो उस टाइम पे खुद को स्टिक रखना वो मुश्किल था कि मतलब अपन क्लास भी नहीं जा रहे तो कैसे अपन मैनेज करेंगे।
वो मेरे लिए डिफिकल्टी था। तो आई थिंक एली मेंटोर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा इसके हाँ, मुझे अंदर। जब भी डाउट था तो मैं पीछे आती थी। हाँ, they are nice. And then you performed amazing. So एली Yeah. की मॉक्स ने भी बहुत हेल्प किया। हाँ हाँ I think हाँ। we should validate Ellie थोड़ा सा, तो let's talk about the good things Ellie has done for us, which it obviously has done a lot, so and also about the people who were playing a role backstage and who set the stage for us behind the screen. so for me, Ellie definitely helped me a lot because as a तो यार एली की हम सब बात कर ही रहे हैं, तो आई थिंक एली रियली हैज प्लेड अ रियली बिग रोल इन आवर जर्नी, तो वी शुड वैलिडेट देयर एफर्ट्स एंड ऑब्वियसली मेनी गुड थिंग्स देयर, तो या everyone. So starting with me, I was connected with Sumit sir. So he really helped me throughout the journey, and the test series and modules were really nice. So yeah, that really helped me in the journey. I was connected with Shivam sir. Whenever there was a doubt, he would arrange a faculty for me, and it helped me a lot. I was connected with Abhugam and Sumit sir. उन लोग ने मेरी बहुत हेल्प की, एंड एली के मॉक्स एंड द GMB also helped me a lot. Like as I was a classroom student, तो सारी faculty से interaction होता था. Like सोनाली मैम ने CR में बहुत हेल्प करी, राजीव सर की vocab तो थी बहुत अच्छी, and then mentorship में सुमित सर अपूर्वा मैम ने भी काफी अच्छा रोल प्ले किया था. same with me, I was a classroom student and मेरे साथ ये था, I heard Ellie is the best and I directly joined it. So for the 6 months when I was with them, they supported me a lot. Sumit sir always helped with QT and mentorship. Then Shivam sir के पास मैं हमेशा जब भी मॉक के बाद पहुंच जाता था scores वगैरह check करने. As you said, all the teachers really helped a lot. Sonali ma'am for logical, Rajiv sir की English, Apurva ma'am with legal. Everyone was really supportive, really good. So that all helped a lot. अमित सर की Amit sir, GK GK, he was He really was- good from the day notes when. were really good. And he taught in such a fun way कि मतलब पढ़ने में मजा भी आता था. It was very And I think conversational. कि एली में तो actually everyone was so nice, even at the Jaipur center, as you name the teachers, Rajiv sir, Sonali ma'am, Amit sir, Sumit sir, Apurva ma'am, everyone was too good, and like they all played a big role, and I think Siddhant sir also played a Yeah, very big Siddhant. role. He was like a very He was a good great teacher, mentor. and Harsh sir, Siddhant He's sir the and Harsh sir. best mentor ever. He best was, mentor. and I think Sumit sir also He- calmed down in person. Like Siddhant sir wasn't obviously available in Yes. person, but Sumit sir was always there 24/7. And बाकी for analytical and maths we had Sushil sir as well. Yeah, he also was very analytically nice. helped a lot. because- His knowledge was And the too last good. month वो अपर्णा मैम के mentorship sessions were also Yeah, scheduled. Yeah, Panda ma'am की mentorship session. I think the way Ellie went about things was very organized, and and the everything was material very is nice, yeah. absolutely top notch. And I think our families have also played a big role in our success. As you said, Lady Luck Luck was also there. So we should talk about that as well. Yeah. So my family was always supportive for me. I mean, I wouldn't have given CLAT if my family did not ask me to, because after my NEET journey, I had reached a point where I was fine with anything. I was like, कर लूँगा कुछ भी life में. I'd stopped hoping for good things. So that is the point where my brother said कि यार, I know that you have potential. I know you can do something with your life. So I'm advising you, give CLAT. I know you'll do well. So under his guidance, I started my preparation. I had told my girlfriend, यार NEET तो ठीक है वो उसके लिए. I'd stopped talking to her for a couple of months for NEET, and then I told her I'd have to do it again for CLAT. And thankfully she was very understanding. She never said time नहीं दे रहा ये या वो. She was always कि this is what's most important, and she always supported me whenever I needed her. She was there, and जब मैं नहीं हो पा रहा था, she did not complain at all. And my family, obviously, lot of families get मतलब angry कि भाई क्या कर रहे तू अपनी लाइफ के साथ. But my family always believed in me more than I believed in myself, and they kept pushing me forward, and I think that made all the difference. Like my parents तो मुझसे ज्यादा तो उन्हें पता था कि इसका तो हो ही जाएगा, और कभी भी उनसे बात करो हो जाएगा चिल हो जाएगा चिल, बस ऐसे ही पूरा 1.5 साल उन्होंने निकाल दिया कि. एंड देन माय सिस्टर आल्सो हेल्प मी अ लॉट. शी यूज्ड टू से कोई बात नहीं मतलब अपन साथ में जयपुर में पढ़ेंगे. And I think ये रहता है ना, parents don't stop us loving. अगर हाँ. नहीं भी हम में से किसी का नहीं भी होता तो भी they would have loved us the same way यार. Like my Parents are younger- parents. my younger brother, like मैं जब वापस घर जाती थी तो he would like अरे दीदी आ गई चलो हम खेलते हैं. वो कभी पढ़ने के लिए मेरे को कभी किसी ने कुछ बोला नहीं पढ़ने के लिए. And still they like 45 तो लानी है आ जाइए. You'll pass, just chill. मेरे केस
मेरे केस में ऐसा था कि मतलब जब कभी भी मार्क्स आ जाते कम ये वो, तो मतलब कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा, कहा बेटा 1 साल और है, ले लेना, तेरा ही है। ये तो मतलब कैजुअली कह देते जो सपोर्टिव होते हैं। फिर there are many who supported me, but I would like to mention my mama, my papa, my mamu, my maternal grandma. They were those who supported me a lot. मतलब कभी ऐसा होता कि बस मैंने अब दे दिया, उनको मतलब था कि कर सकती है, तू तेरा हो जाएगा। और मेरी सिस्टर, उसका भी मेरे साथ ही हुआ है NLSIU, और मुझे बहुत खुशी है कि वो मेरे साथ ही रहेगी। ट्विनिंग इन बैंगलोर। I think for me, my family, my sister and my friends, वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। मतलब they supported me throughout कि अगर मैं अंदर पढ़ रही हूँ तो हमारे रोज होता था कि फैमिली टाइम पे सबको चारों को साथ में आके बैठना ही है। You have to share about your day and everything. And मेरा जब रिजल्ट आया था, we were in a restaurant, मेरे से ज्यादा मेरी बहन रोई है। I'm not even kidding। मतलब my friends and मतलब एक होता है ना, दोस्तों को कॉल किया, उनको मेरी आवाज से पता चलेगा क्या हुआ है तेरे को, लोग के साउंड कर रही है, घर के नीचे आ जाएंगे, नीचे आ मैंने। सो वो मैटर करता है बहुत। So yeah, for me, my parents were really supporting. Like they always motivated me कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एग्जाम है सिर्फ, क्या होता है आगे। मतलब सिंपल था कि अपना बेस्ट दे के आओ, और होना नहीं होना वो बात की बात है, उसके बाद नहीं हुआ तो क्या हुआ, आ रही तो जानी है। पेरेंट्स का तो सबका, इवन माय मॉम माय डैड, दे वर ऑलवेज बिहाइंड मी एंड दे नेवर से कि क्यों नहीं हो रहा या रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट डजंट मैटर, दिख रहा है मेहनत कर रहे हैं तो दैट्स इट। एंड दे वर राइट बिहाइंड मी, माय सिस्टर वाज विद मी। एंड उसके अलावा एज शी सेड, फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए कि इवन व्हाइल दे आर टॉकिंग टू यू तो उनको पता होता है व्हेन यू आर डाउन। तो लिटरली देयर वाज अ डे व्हेन I left a mock beach में and I was crying at home. It was a really down phase, and Anjali and Anant, as they were, so they called me. They knew identity and they came at my home and uplifted me up. And it always used to happen. So these friends and family always played a role. And so our मेरे mentors. केस में तो ऐसा था कि जिस दिन रिजल्ट आया था ना, उस दिन मेरा भाई कंटिन्यूअसली मंदिर भाग रहा था, हो जाएगा तेरा हो जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं हुआ ना, फिर देखना। तो मतलब वो श्योरिटी थी उसको भी कि हो जाएगा, इतना मतलब एफर्ट्स डाला है तो। रिजल्ट वाले दिन everyone was sure in my family, even मतलब मैं काफी टाइम तक मेरी नानी के घर रही थी, तो they were also sure कि आज हो जाएगा इसका। मैं बस ये सोच रही थी हो जाए बस। I was the only one, तो मैं sure नहीं थी। This anxiety तो happens. मतलब ज्यादा श्योरिटी सब कुछ सब But कुछ हाँ, surety actually थी, घर ये पे तो भी पक्का था। everyone was like कि ये शायद सबके साथ था, पहले हो गया था डिक्लेयर कि हाँ भाई तू तो जा रहा है। हाँ, even I was saying them, calm down. चलो Calm फिर down. लेट्स रैप अप दिस। Yeah. चलो फिर बैंगलोर में मिलेंगे। बैंगलोर में हम मिलेंगे। हमें कभी दिल्ली बुलाना, अरे बिल्कुल। साथ में छोले भटूरे खाएंगे। एंड बैंगलोर में मौसम अच्छा है। हाँ, दिल्ली से अच्छा है। हम भी आएंगे कभी। अरे बिल्कुल, रूम ही शेयर। तो चलो एक बार इनको भी गुड विशेस दे देते हैं। All the best. All All the the best. best. फोड़ देना। और पढ़ लो अब जाके। जाओ, okay, video finished. Bye. Bye.